राय सर्व नमस्कार मुद्रा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पादेन वाचं मालं शरीरस्य च वेदकेन जोपाकरोत्तं प्रभुरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरान तस्मै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm. When it's little warm, gently touch your palm. And gently open your hands. ओके, सो कल हम लोग जो भी चर्चा किए हैं उसके ऊपर किसी का कुछ क्वेश्चन है? স্যার ওই একটা বলেছিলেন না ওই হোমিওস্ট্যাটিস, यस, ওইটা মানে বুঝতে পেরেছি বাট গুছিয়ে বলতে পারছি। जरूरी नहीं है। देयर विल बी एन वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज होमियोस्टैटिस। वन लाइन মানে মানে এটাও তো বলতে পারি ওই যাদের বিপি, সুগার লেভেল, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এইসব ঠিক থাকে, সেই ওভারঅল পুরো ব্যাপারটাকে ওই হোমিওস্ট্যাটিস বলে। होमियोस्टैटिस, यस, दैट মানে इज এটা একটা ডিসব্যালেন্স হলে সেটাও বলা যায় যে হোমিওস্ট্যাটিস ডিসব্যালেন্স হয়েছে, আর ঠিক থাকলে ঠিক আছে। एकदम। Now today we'll move to 3.3 yogic positive attitudes, maitri karuna mudita upeksha. Again, yogic positive attitudes, maitri karuna mudita and upeksha. जैसे हम लोग पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं, चित्त प्रसादनम वही है अल्टीमेट पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हाट इज चित्त प्रसादनम? चित्त means mind stuff and prasadanam means equilibrium stage, positive। क्या है? there is चित्त प्रसादनम, हम लोग जानते ही हैं कि मैत्री करुणा मुदिता पेक्षणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयनम भावनात् चित्त प्रसादनम। मतलब मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये चारों को एक साथ और किस व्यक्ति से कैसे आचरण करना है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। there is anger, addiction। anger means anger कब होता है? जब वहां से हमारा अटैचमेंट होता है। behind the heart became dirty due to the presence of envy, and the dirty mind does not want to settle down easily. That is why it has been said in Patanjali Yoga to bring purity of mind. That is Maitri Karuna Mudita Upeksha. The feeling of friendship with happy person is Maitri. Karuna, the feeling of compassion with sad person is Karuna. Mudita, showing respect to the honorable person, and Upeksha, ignore the weak person. This is all are combinedly known as Chitta Prasadanam. Okay? By bringing clarity of mind, this is to see the feeling of friendship in a happy man, the feeling of kindness in a sad man, the feeling of contentment in a peaceous man,
and the feeling of neglect of sinful man destroy the anger, hatred, jealousy, etc. of the heart and manifest a pure and pure heart. That is Chitta Prasadanam. Okay? বলছি দুটোর কি মানে কোনো আলাদা কোয়েশ্চেন না একই কোয়েশ্চেন, অ্যান্সার তো সেম? आंसर भी सेम है, कॉन्सेप्ट इनको समझना है. What are all those things? इसका চিত্র প্রদর্শনম মানে এই চারটে তার ডিটেলস ঠিক আছে বুঝেছি, কিন্তু এই যোগিক পজিটিভ অ্যাটিটিউড যেটা আর এইদিকে আগে যেটা ছিল সেই দুটোর তো মানে কোয়েশ্চেনটা আলাদা কিন্তু অ্যান্সারটা সেম। পতঞ্জলি এটা কি ছিল? यहाँ पे जो है दैट इज हेल्थ को कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें बोला जा रहा है कि चित्त प्रसादन में इज वन ऑफ टू पॉजिटिव वाइब को मेंटेन करने के लिए और पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए। আর আগেরটা তো মেন্টাল হেলথ ছিল, ওটাও চিত্র প্রদর্শনম। यस, আর এইটা হচ্ছে কি বললেন এটা? पॉजिटिव एटीट्यूड। পজিটিভ অ্যাটিটিউড এটা। यस, মানে মেন্টাল হেলথ আর একটা কি কি হেলথ বললেন না এটা? পজিটিভ অ্যাটিটিউড। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव कोई व्यक्ति कैसे रह सकते हैं। আচ্ছা পজিটিভ, ঠিক আছে। মানে মেন্টাল হেলথ জিজ্ঞাসা করলেও আমি বলবো চিত্র প্রদর্শনম, আর পজিটিভ অ্যাটিটিউড কিভাবে থাকবো সেটাতেও চিত্র প্রদর্শনমই বলবো। यस, नहीं दोनों पे ही बोलना है कि क्या बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर चित्त प्रसादन का पालन करते हैं तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रहेगा। एंड ये भी बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वो चित्त प्रसादन पालन करते हैं तो मन शुद्ध रहेगा। दोनों ही सही बात है, नथिंग इज फॉल्स। তাহলে মানে কোশ্চেনটা কি এটা হবে যে মানে চিত্র প্রদর্শন করলে কি কি হয়, বা আপনি হয়তো বললেন যে মেন্টাল হেলথ ঠিক থাকতে গেলে কি করতে হবে? यस, हाउ टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, तो उसमें बोल सकते हैं कि थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा वी कैन मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर? Else we'll move to 3.4. Concept of bhavas. Next is concept of bhavas. भाव क्या है जिसके द्वारा हमारा पूरा दिन को हम लोग गुजार सकते हैं, दैट इज कॉल्ड भावस। कैसे गुजार सकते हैं, और दिस इज वेलबींग को मेंटेन करने के लिए भी ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू मेंटेन ऑल दिस भावस, तब जाके कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव वेलबींग वो फील कर पाएंगे। फर्स्ट इज धर्म भाव। धर्म क्या है? दैट इज रिलीजन इज कंबाइंड ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड स्पॉन्टेनिटी। रिलीजियस इज व्हाट वी होल्ड, जो हम लोग धारण करके रखते हैं वही है धर्म। जैसे धारण कैसे करके रखते हैं, अगर सिंपली वे में अगर देखते हैं, जस्ट यू कैन सी इफ यू आर वॉकिंग ऑन रोड और कोई नहीं देख पाते हैं, ऐसे कोई या बुजुर्ग कोई व्यक्ति वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और आप जाके यूं ही उनको हेल्प करते, दैट इज कॉल्ड धर्म भाव।
कोई आपको लग रहा है कि ओके ही और सी नीड्स योर हेल्प और आप उनको हेल्प करते हो विदाउट थिंकिंग ऑफ द गेनिंग ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट इज कॉल्ड धर्म भाव। जैसे सिंपली बोल सकते हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द क्यू फॉर बाइंग टिकट, दैट इज धर्म भाव। क्योंकि मेरा धर्म क्या है कि सही रूप से काम करना, कि हम जाके ये नहीं बोल सकते हैं नहीं, you all have to sacrifice and you need to allow me to buy ticket first, ठीक है, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? which is automatically which done, that is धर्म भाव। ओके স্যার মানে কিছু রিটার্ন প্রত্যাশা না করে কাউকে হেল্প করাটা ধর্মভাব। जब जो नॉर्मली कैजुअली हम लोग करते हैं, जैसे धर्म क्या है, जैसे एक स्टूडेंट, उनका धर्म क्या है? पढ़ाई करना। वो ये नहीं মানে এটা बोल হেল্প सकते করা हैं, না, नहीं মানে नहीं, আমার যেটা কাজ আমি সেটা করছি, মানে আমার যেটা Yes. করা ধর্ম সেটা আমি করছি। यस, जो এটা स्पॉन्टेनियस, जो कोई बोल, अगर कोई बोलते हैं नहीं बोलते, इट डज नॉट मैटर, दैट इज कॉल्ड धर्म। মানে जैसे इफ यू आर ए एम्प्लॉय, सो व्हाट्स योर धर्म? टू वर्क, काम करना। इफ यू आर ए फादर, व्हाट इज योर धर्म? और मदर, व्हाट इज योर धर्म? टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, दैट इज योर धर्म। ये कोई नहीं बोलते हैं बट यू आर डूइंग स्पॉन्टेनियसली, दैट इज धर्म। रास्ता से जा रहे हैं या कोई लोकल ट्रैवल कर रहे हैं and someone is saying okay I am sick, और आपको देख के लग रहा है कि वो सिक है और आप उनको अपना जगह छोड़ दो, दैट इज धर्म। सर इसको कर्तव्य भी बोल सकते हैं। लेकिन वो धर्म भाव में जो रहते हैं वही कर्तव्य करते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय है, अब मुझे तो ये काम करना ही है क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो मुझे ये काम करना ही है, तो मेरा कर्तव्य है करना। ये देख, हुआ। ये धर्म ये है, जैसे एक स्टूडेंट जब व्हेन यू आर इन स्कूल, तो स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ाई करना, वहाँ पे जो भी टीचर्स है उनका रेस्पेक्ट करना, कोई वहाँ पे 4th ग्रेडेड स्टाफ भी होते हैं उनसे भी सही बिहेव करना। और हम जानते हैं स्कूल में जब जाते हैं हम किसी को ऐसे ही धक्का नहीं लगा सकते हैं, हम किसी को ऐसे ही, मतलब हम ये नहीं बोल सकते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई विश टू गो टू होम, ये नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये आपका धर्म नहीं है। कोई टीचर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये नहीं कर ये पाए। सब चीज तो सब धर्म समझ सकते हैं, बट जहाँ पे मुझे ये जरूर करना ही है, अब मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो ये पढ़ाई, तो ये धर्म बोलेंगे इसको ना, कर्तव्य बोलेंगे नहीं, ये तो मेरा काम ही है, करना है, मुझे नहीं, पढ़ना ही धर्म है। भाव से कर्तव्य करना है, ठीक है, कर्तव्य तो अच्छा, कर रहे हैं, मतलब कोई घर में करना है, आया लेकिन है हाँ तुम्हारे घर में कोई मेहमान और तुम उनको गाली देते हुए चाय बना रहे हो, दैट इज नॉट भाव, नहीं वो नहीं। वो कर्तव्य हो गया, लेकिन वो धर्म भाव नहीं। धर्म भाव कौन है? अगर वो आए हैं, हो सकता है तुम्हारा बहुत ज्यादा ही हाँ, खुशी मन कोई से, एक, मतलब बट यू आर विथ स्माइलिंग फेस यू आर वेलकमिंग देम, और हो सकता है कि मतलब लाखों का नुकसान भी तुम भूल गए, दैट इज धर्म भाव। ओके, दिल से करना एकदम। मतलब, हाँ समझ गई। देन স্যার এটা बोलो। স্যার এটা যেটা বললেন যে ভাবাসটা এটা কি, মানে ভাবনা যেটা বললেন না যে যার উপর ভিত্তি করে আমরা সারা দিন কাটিয়ে দিতে পারি, এটা মানে এই ভাবাসটা কি ভাবনা, মানে ভাবি আমরা, दैट इज अ स्टेज ऑफ लिविंग, स्टेज ऑफ लिविंग, स्टेज ऑफ लिविंग मतलब जैसे जिस स्थिति में लिविंग। अच्छा, रहते हैं दैट इज धर्म। धर्म ना, ভাবাস যেটা
हाँ, मतलब भाव वही है जिस स्टेज ऑफ माइंड बोल सकते हैं, दैट इज भाव, स्टेज ऑफ माइंड, मतलब जिस मन का स्थिति के साथ हम लोग रहेंगे। धर्म का मतलब जो हम लोग को धारण करके रखते हैं वही है धर्म, उसी भाव। मतलब कभी भी ये नहीं सोचना है कि ओके आई एम डूइंग दैट थिंग्स, ओके आई एम बाउंड टू डू दिस थिंग्स, सो एंड आई एम एंजॉयिंग दिस थिंग्स and I am not dependent on someone to do this job. That is dharma bhav. Then gyan bhav. Gyan is enlightenment, is to know what is real knowledge is. ज्ञान वही है जो आखिर में सच है उसी को एक्सेप्ट करना, दैट इज ज्ञान भाव। Okay, 1 minute. Okay, then ज्ञान भाव। तो ज्ञान क्या है? What is real and what is unreal? ये जो जानते हैं, that is ultimate ज्ञान। Okay. What is real and what is unreal? That is ज्ञान। रियल क्या है एंड अनरियल क्या है, ये अगर देखने के लिए जाते हैं, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बोलते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, दैट इज अल्टीमेट रियल। मीन्स इस दुनिया में whatever we are seeing, whatever we are watching, everything is unreal. And what is real? Only God is real, because he will stay and will not be here. सिर्फ वही रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। Are you accepting that things or not? जैसे क्यों नहीं रहेंगे, जैसे देखो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो इंद्रिय है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो कितना टाइम तक है? मे बी 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 100 ईयर्स। उसके बाद हम लोग मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो क्या रहेगा? आपका जो फोटो है यहाँ पे, ऑल आर गर्ल्स, हो सकता है कि तुम्हारा बेटा कुछ दिन तक रखेगा घर में, या तुम्हारा बेटी रखेगी, फिर बेटा का शादी हो गया तो मतलब तुम्हारा फोटो भी फेंक दिया जाएगा, क्योंकि अरे ये भी कौन था, 2000 पीढ़ी के बाद सब लोग भूल ही जाएंगे। होता है या नहीं होता है? यस सर। हाँ, या तो कहीं पे गिर के टूट गया तो बस तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म, और कोई तुमको याद करने वाला रहेगा ही नहीं। सो दिस इज द अल्टीमेट रियल, जो हम लोग बोलते हैं ओके दिस इज बिलोंग्स टू मी एंड आई नीड दिस थिंग्स, आई नीड दैट थिंग्स, ये कुछ भी नहीं है। आई नीड बोल के कुछ होता ही नहीं। ओके, so that is the ज्ञान भाव, ultimately that is the ultimate knowledge. Then vairagya or abstain, to be unattached to anything, for example to act without attachment, कोई भी काम करेंगे बट उससे अटैच नहीं होके काम करना, that is वैराग्य भाव। क्या है? जैसे टू बी अनअटैच्ड टू एनीथिंग, किसी से अनअटैच रहना, जैसे इफ जैसे किसी के ऊपर हमारा अगर ऐसा नहीं है कि वो कुछ देते हैं या वो कुछ बोलते हैं तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा स्थिति अगर मन का नहीं हो, दैट इज कॉल्ड वैराग्य।
इसका जो डेफिनेशन है दैट इज इन पतंजलि योग सूत्र, उसमें बोला गया स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूप नौकार इविंद्रियाणं प्रत्याहार। स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूप नौकार इविंद्रियाणं प्रत्याहार। स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूप नौकार इविंद्रियाणं प्रत्याहार। इंद्रिय का जो अपना विषय है उनसे मन को हटा लेना, वही है वैराग्य, वही है प्रत्याहार। और प्रत्याहार जब होगा तभी आके वैराग्य आएगा। जब उनसे हम खुद का कनेक्शन नहीं फील करेंगे, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। वैराग्य का उदाहरण कुछ दिन पहले उदाहरण बोल रहे थे ना कि चैतन्य महाप्रभु, उनका गुरु उनसे पूछे कि आप संन्यास के लिए रेडी हो? बोला हाँ रेडी है। तो उनको बोला गया कि जस्ट पुल आउट योर टंग आउट, ठीक है, और उसमें उन्होंने नमक रख दिया, बोला कि इसको फूंक मार के मुंह से बाहर निकाल दो, और उन्होंने वो कर दिए। लेकिन हम लोग जो भी साधारण व्यक्ति है वो हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज वी डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन आवर इंद्रियास। इसीलिए हम लोग अटैचमेंट रह ही जाते। लेकिन जो विदाउट अटैचमेंट करते हैं कोई भी काम, तो आपका वेलबींग वो इनहेंस होगा, तब अपना वेलबींग को बढ़ावा मिलेगा। Okay? Then Aishwarya. What is Aishwarya? Aishwarya means Aishwarya of mind. The breadth of one's mind is measured by how curious one mind is. ऐश्वर्य इसके द्वारा नापा जाता है कि वो कितना उदार है, वो कितना किसी को माफ कर सकते हैं, वही उनका ऐश्वर्य है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका देहांत हुआ था मेवाड़ में। वहां पे वो राजघराने में वो कुछ तर्क युद्ध करने के लिए गए थे। तो वहां पे एक नर्तकी या जो भी वो सर्व करते हैं, वो उनको जूस में जहर मिला के उनको दे दी, और वो पीने के बाद वो तुरंत वहां पे मतलब नहीं मरे थे, लेकिन 24 आवर्स के अंदर ही उनका देहांत हो गया था। और वो जान गए थे कि इनका वो शरबत पीने के बाद ही इनका ये हाल हुआ है। सो ये जो सिचुएशन है, तो जब वो इस सिचुएशन में है, तब जाके जैसे वो किसी को माफ करने के लिए, और तब उन्होंने राजा को बोल के गए थे उनका देहांत होने के पहले कि हम इनको माफ कर रहे हैं और आप इनको कुछ भी पनिशमेंट नहीं देना। ये कैसे वो बोल के गए थे, क्यों बोल पाए थे? बिकॉज ऑफ हिज ब्रॉडनेस, यस, उदारता। दैट इज द ऐश्वर्य ऑफ माइंड। ओके, ओके, तो यही धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य में अगर कोई रहते हैं तो उनका वेलबींग जरूर एनहेंस हो। वो कभी भी, उनका वेलबींग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल द टाइम दे विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। Move to 3.5 दिनचर्या and ऋतुचर्या with respect of योगिक लाइफस्टाइल। अगर योगिक लाइफस्टाइल बोला जाता है तो उसमें यही है कि उनका दिनचर्या ऋतुचर्या क्या है। दिनचर्या मतलब एक दिन को
कैसे रचना करना चाहिए, और अगर कोई एक दिन को सही से रचना करते हैं तो उनका जीवन बहुत आनंदमय होता है। What should be done throughout the day is called dinacharya. This is an Ayurvedic concept. The daily routine or dinalipi is mentioned in Ayurveda. If we observe it, we get rid of tridosa or tridosa. Vata, Pitta, or they have equilibrium in this ritual. और कोई ऐसे वात पित्त कफ इन तीनों को वो मेंटेन कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनको शरीर से हटाया नहीं जा सकता है। वात पित्त कफ को हटाया नहीं जा सकता है। इट कैन बी इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब इनको बैलेंस किया जा सकता है। यस, और ये क्या क्या है एक दिन को अच्छा बनाने के लिए? waking up early in the morning, eliminate waste, cleanliness, massage or body massage, asana to bath, meditation and prayer, eating food to study, to work, relax and sleep. मतलब जल्दी जल्दी मॉर्निंग में उठना हो, शरीर को साफ सुथरा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्लियर करना होगा, साफ सुथरा रहना होगा, जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठ के ही मुंह धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं। देन मसाज और बॉडी मसाज, यहाँ पे जो नहाने के टाइम पे जो मसाज और बॉडी मसाज होते हैं वही इसका ही बारे में बोला गया है। आसना, एवरी डे वी नीड टू परफॉर्म सम आसना। टू बाथ, नहाना चाहिए एवरी डे। मेडिटेशन एंड प्रेयर, ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। भोजन करना है, हम योगी बन गए बोल के कोई भूखा नहीं रह सकते हैं। टू स्टडी, एवरी डे पढ़ाई करना चाहिए। काम भी करना है, रिलैक्स भी करना है और सोना भी है। रिलैक्स मतलब आप ऐसे ही बैठे हुए, आप ऐसे ही सोए हुए हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज वी कैन से रिलैक्स। ये है दिनचर्या। ऐसा पूरा दिन अगर हम लोग रचना करते हैं देन विल बी सो हैप्पी पर्सन। एंड ऋतुचर्या, एक ऋतु को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? According to Ayurveda, how we proceed in 6 seasons is the subject of Ritucharya. These 6 seasons are Shishir or winter, Basant or spring, Grishma or summer, Varsha or monsoon, Sarat or autumn, Hemant or late autumn season. These all are Ritucharya. Then, ये 6 ऋतु है। 6 ऋतु को 2 काल में डिवाइड किया गया। एक है आदान काल और उत्तरायण, एंड विसर्ग काल, दक्षिणायन। आदान काल और उत्तरायण क्या है? 15 जनवरी टू 14 जुलाई, एंड विसर्ग काल इज दक्षिणायन 14 जुलाई टू 15 जनवरी। इस समय काल को विसर्ग काल बोला जाता है। ओके, दिस इज, ये 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि 15 जनवरी के बाद फिर गर्म स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग का यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो सूरज फिर धीरे धीरे वो दक्षिणायन में, उत्तरायण में, उत्तर दिशा में उनका रूप बदल जाते हैं। और दक्षिणायन अभी तक सूरज दक्षिण दिशा में, जैसे कल मॉर्निंग में देखना एकदम पूर्व दिशा से सूरज नहीं उग रहा है, सूरज दक्षिण में मतलब थोड़ा राइट साइड होके ये उड़ रहा है। That's why it's called दक्षिणायन। और ये 15 तारीख के बाद से फिर वो घूमना स्टार्ट हो जाता है दूसरे साइड। इस 2 काल की वजह से शरीर में कोई हेर फेर या कुछ प्रभाव, कुछ ऐसा कुछ है क्या? काल के वजह से मतलब ये तो सीजन है ये, और इस सीजन के लिए इसलिए जैसे विंटर सीजन ऐसे, जैसे 15 जनवरी देखना हर एक जगह पे दे आर प्रिपेयरिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ डिश। कौन सा? जैसे पीठे पुली, अच्छा, ठीक है। और जैसे दूसरी जगह पे दूसरा मकर संक्रांति मनाया जाता है, क्यों मनाया अच्छा जाता है? सर, ये यहाँ पे तो पीठे पुली ये सब चलता है। मैंने भी सुना हो ये यूपी बिहार ये सब एरिया में खिचड़ी विचड़ी या पकोड़ा ये मकर सब बनता है। संक्रांति, वही मकर संक्रांति अलग अलग फूड बनाया जाता है। हाँ, जैसे क्यों? साउथ इंडिया बहुत में जगह सर,
हाँ, पंजाब में सर पंजाब में भी होता है हाँ ये सब हाँ हाँ, लोहरी वगैरह ये सब लोरी। आता है। नहीं नहीं, हाँ, एक स्पेशल काइंड ऑफ डिश बनाया जाता है, ये तो उत्सव बोल के कुछ है नहीं, अच्छा। उत्सव नहीं मतलब डिश भी बनाते हैं। हाँ, बनाया। पोंगल वगैरह बनाते हैं, पोंगल वगैरह होता है वो साउथ साइड में कुछ। एकदम एकदम, मतलब वो डिश कुछ बनाया जाता है और उस टाइम पे वो पोंगल खाया वो जाता खिचड़ी जैसा बनाता है। हाँ। उत्सव मनाया है। जाता। और ये जब भी हम लोग खाते हैं तब शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट अप होता है, हम्म। और जब भी इम्यूनिटी स्टार्ट होता है या बूस्ट अप होता है, देन वी could able to sustain in better way। यही है ऋतुचर्या, ये भी ऋतुचर्या का ही एक पार्ट है। मतलब जो भोजन ऐसे हर एक टाइम पे देखना अलग अलग, जैसे स्प्रिंग में, समर में, मानसून में, जैसे समर के हाँ। टाइम पे घर में भी ऐसे खाना बनाया जाता है, देखना जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, या मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रूट्स या फ्रूट, कुछ वेजिटेबल्स। हाँ, वेजिटेबल्स वो अलग अलग इनकॉर्पोरेट होता किया है। जाता है। इसीलिए जैसे आज के दिन पे ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी चाइना में अभी भी फिर भी कोरोना के द्वारा सभी लोग परेशान हैं, लेकिन इंडिया में देखो आज भी हम लोग बहुत आनंद में हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, खास करके ऋतुचर्या, बिकॉज वट एवर वी आर हैविंग फूड, दिस ऑल आर मेडिसिन इन डे टू डे लाइफ। It is very important to follow the right rules according to this seasons to stay healthy. If we observe the daily routine and seasonal cycle, then we can make our daily life beautiful, and we can take care of our body in a healthy way in every season. Dinacharya teaches us how to live one day. Ritucharya teaches to provide an outline of what kind of food to eat in each season and how to start daily activities. If our dinacharya is composed keeping in mind season, it will definitely indicate good well-being. That is the Ritucharya. Any question? तो यही है दिनचर्या, मतलब एक दिन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, ऋतुचर्या के एक ऋतु को कैसे अच्छा रख सकते हैं। 6 ऋतु है, 6 ऋतु के अनुसार हमारा दिन को मेजर करना या दिन को एक रूटीन करना, दिनोलिपि बनाना, वही है मेन है मतलब दिनचर्या ऋतुचर्या के पार्ट। जैसे ऋतु में, जैसे अभी ठंडा है, अभी 4 बार नहीं नहा सकते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम पे यू आर अलाउड टू टेक बाथ 4 टाइम्स। वैसे ही ऋतु के अनुसार अपना जीवन पद्धतियों को बदलना, वही है ऋतुचर्या। ठीक है, देन we'll move to holistic approach of yoga towards health and diseases. Holistic approach of yoga towards health and disease. डिजीज को संस्कृत में बोला जाता है व्याधि। संस्कृत में इनको बोला जाता है व्याधि। व्याधि कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, एक है आधिजा और एक है अनाधिजा। व्हाट इज आधिजा? आधिजा जो है स्ट्रेस बॉर्न है, जो स्ट्रेस के कारण होता है, दैट इज कॉल्ड आधिजा। एंड अनाधिजा जो नॉन स्ट्रेस बॉर्न है। स्ट्रेस के कारण जो होता है वो स्ट्रेस भी 2 प्रकार का है, एक है सारा और एक है सामान्य। सारा है जो एसेंशियल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ उनके द्वारा वो नियंत्रित है, दैट इज कॉग्निशनल डिजीज। रेमेडी है सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कोई किसी का मन में मरने का डर है, तो वो क्या बोल सकते हैं उनको? दैट इज सारा। और सामान्य क्या है? दैट इज कॉमन साइकोसोमेटिक, सोमेटोपैथिक, हिस्टोरिकल न्यूरोसिस, दैट इज सामान्य। इसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग योग अभ्यास के द्वारा ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। साइकोसोमेटिक मतलब पहले शरीर मन में कोई रोग का प्रादुर्भाव होता है और फिर वो शरीर में प्रवाहित होते हैं।
एंड सोमेटोपैथिक मतलब पहले मन में, शरीर में कोई रोग का प्रादुर्भाव होता है, फिर वो मन को कलुषित करते हैं। जैसे किसी का सिर दर्द हो रहा है और फिर वो टेंशन में आ गए, मेरा शायद माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मेरा शायद आंख का प्रॉब्लम है। फिर वो शरीर में शायद हो सकता है कि दर्द हुआ, लेकिन वो फिर मन में प्रवाहित होने के कारण फिर वो नया डिजीज को जन्म देता है। इसको हम लोग पंचकोशक ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक डिजीज अगर ले सकते हैं, जैसे किसी का सोच लेते हैं कि डायबिटीज है, उनको कैसे डायग्नोसिस करेंगे और उनको कैसे चिकित्सा करेंगे। पंचकोश हम लोग जानते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये 5 स्टेज में डिवाइड करके उनको हम लोग को गाइड करना है। जैसे अन्नमय कोश का ट्रीटमेंट कैसे होगा, उनका डाइट को हम लोग को फिक्स करना चाहिए। मतलब उनका डाइट क्या होगा, क्या नहीं होगा, दैट नीड टू बी सेड। अच्छा, आप किस तरह का भोजन नहीं कर सकते, आप मिठाई वाला जितना भी कोई भी मीठा चीज आप नहीं खा सकते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। सूक्ष्म व्यायाम, उनका हेल्थ के अनुसार उनको सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, षटकर्म, ये सारा कुछ कर सकते हैं फिजिकल बॉडी के लिए। प्राणमय कोशा के लिए उनको प्राणायाम करवा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिनके द्वारा उनका प्राण जो है, मतलब लाइफ फोर्स है, वो बहुत इनहेंस होगा। देन मनमय कोशा, मन उनका कलुषित ना हो, इसलिए उनका मनमय कोशा के ऊपर भी हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि उनका मन में अच्छा चिंता आए, वो उसको ऐसा न्यूज नहीं दिखाएंगे, अच्छा देखो उस व्यक्ति का डायबिटीज हुआ है और उनका आज किडनी डैमेज हो गया, उनका डायबिटीज था और उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका डायबिटीज था। पॉजिटिव बातें बताना होगा। नहीं, उनका मन ठीक हो। देखो आज के दिन पे डायबिटीज एक कॉमन बीमारी है, और ये आज के नहीं, वो पिछले जमाने में भी था। और ये अगर ডায়াবেটিস হলেই খবরগুলো পাওয়া যায়, हम्म ডায়াবেটিস যার হয় তার কানে দেয়া হয় যে দেখ এর ডায়াবেটিস হয়েছে তো ওই হয়েছে তাই হয়েছে, মানে हम्म আমার ডায়াবেটিস তো আমি এই খবর প্রচুর পরিমাণে পাই। हाँ, तो ऐसे कभी मन को दुखी नहीं करना है। না क्या দুঃখী करना है, করি না। नहीं नहीं, जैसे if someone is coming to you, you need to train them also in that way। अच्छा ठीक है, डायबिटीज है तो कोई डायबिटीज के साथ 50 साल भी जी सकते हैं और 100 साल भी जी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। ठीक है, मन में इच्छा होगा चलो आज पकौड़ा खाते हैं, नहीं खाना है। मन में इच्छा होगा चलो आज मिठाई खाते हैं, नहीं खाना है। चलो आज मतलब कुछ भी आउटिंग में जाते हैं, शरीर में जितना भी स्ट्रेस है ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। विज्ञानमय कोश में क्या करना है कि अच्छा गुड इंटेलेक्ट ही हैज टू रिसाइट भगवत गीता। अगर डायबिटीज है उनको भी भगवत गीता भी पढ़ा सकते हैं, और उनको ये भी एक पूरा आउटलाइन दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति का डायबिटीज होने से उनका शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है और उसके द्वारा उनका मैकेनिज्म क्या है। जब उनका वो मैकेनिज्म समझ जाएंगे तब उनको आप मिठाई दोगे तो भी नहीं खाएगा, आप उनको बोलोगे अच्छा चलो पूरा रात आउटिंग में जाते हैं तो भी वो नहीं जाएगा, बिकॉज ही और शी विल से ओके दैट इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। मे बी साल में एक बार कर लिए, लेकिन एवरी वीक हम एक दिन के लिए नहीं जा सकते हैं, या एवरी वीक आई एम नॉट गोइंग टू हैव रसगुल्ला एनीमोर, बिकॉज वो उनका विज्ञान में कोर्स में उनका नॉलेज में वो एस्टेब्लिश हो गया, सो ही और शी विल नॉट डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स एनीमोर। ठीक है, then next is Anandamaya Kosha. If all koshas are balanced, then his mind will be blissful state of mind. अगर आनंदमय कोश, ये चारों कोश अगर मेंटेन्ड है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली वो आनंदमय कोश में विराज करेगा। तब उनका जो सामान्य जो प्रॉब्लम है या आधिजा जो व्याधि है वो शरीर से दूर हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह हम लोग कोई भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं इन योगिक कॉन्सेप्ट। मतलब इससे ये आदिजा अनादिजा दोनों ही कर सकते अनादिजा तो हैं। ठीक नहीं किया जा सकता है योग से। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो तो स्ट्रेस बॉन्ड अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा उसमें योग का कोई योगदान है नहीं। अच्छा। अनादिजा इज ए नॉन स्ट्रेस बॉन्ड। जैसे किसी का बुखार आ गया अचानक, वायरल फीवर, उसमें योग क्या करेंगे? उसमें तो मेडिसिन ही लेना पड़ेगा सर। हाँ, उसमें सही आयुर्वेद है, ये सारा समय सारा सारा है जो सारा है जो सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति का मन में अगर डर रहता है कि हम मर जाएंगे, वो मरने का डर किसी के मन से हटाया नहीं जा सकता है। और वो हटेगा कैसे? क्योंकि आप तो किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यू विल स्टे हियर इन दिस वर्ल्ड फॉरएवर, आपका कभी मृत्यु नहीं होगा। ये किसी कोई बोल सकते हैं? किसी को नहीं बोल सकते हैं। सभी का मृत्यु होगा। सो वो है सारा, मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन। अच्छा ठीक है, इसको अगर कोई नॉर्मल मानते हैं कि किसी का जन्म हुआ है उनका मृत्यु होगा, और किसी का मृत्यु हो रहा है मतलब उनका फिर पुनर्जन्म होगा, दैट इज सारा। और समय सामान्य है, सामान्य सामान्य दैट इज कॉमन साइकोसोमेटिक, सोमेटोपैथिक और हिस्ट्रिकल न्यूरोसिस प्रॉब्लम। हिस्ट्रिकल न्यूरोसिस की जैसे जो नार्व का प्रॉब्लम होता है दैट इज हिस्ट्रिकल न्यूरोसिस। যত রকমের সমস্যা সবই ওর মধ্যে যাবে, তাই? हाँ, उसको भी हम लोग योग का अभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज 3.7। ये बहुत छोटा एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे सभी का ना वो अच्छा क्या है, सारा सामान्य सिर्फ एक एक वर्ड में इनको याद रखना है। हाँ, then we'll move to 3.7 introduction to first aid and cardiopulmonary resuscitation. What is first aid? First aid is the fast and immediate assistance given to any person suffering from either minor or serious illness or injury, with care provided to preserve life, prevent the condition from worsening, or to promote recovery. It includes initial intervention in a serious condition prior to professional medical help being available, such as performing cardiopulmonary resuscitation CPR while waiting for an ambulance, with, as well as the complete treatment of minor conditions such as applying plaster to a cut. First aid is generally performed by someone with basic medical training. इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का जरूरत नहीं होता। That is the first aid. Then cardiopulmonary resuscitation, CPR. Here is an emergency procedure that combines chest compression often with artificial ventilation in an effort to manually preserve intact brain function until further measures are taken to spontaneous blood circulation and breathing in person who is in cardiac arrest. It is recommended to are unresponsive with no breathing or abnormal breathing, for example, diagonal respiration. मतलब कोई व्यक्ति का अगर हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट नहीं चल रहा है तब जाके सीपीआर दी सकते हैं। और सीपीआर के अंदर में क्या क्या है? सीपीआर इन्वॉल्व्स chest compression for adult between 5 centimeter, 2 inch and 6 centimeter, 2.5 inch deep at a rate of at least 10 to 120 per minute. The rescuer may also provide artificial ventilation by either exhaling air into the subject's mouth or nose, mouth-to-mouth resuscitation, or using a device that pushes air into the subject's lungs, mechanical ventilation. Current recommendation
place emphasis on early and high quality chest compression over artificial ventilation. A simplified CPR method involving chest compression is only recommended for untrained rescuer. In children, however, only doing compression may result in frozen outcome because in children the problem normally arises from a respiratory rather than cardiac problem. Chest compression to breathing ratio is set at 30 to 2 in adult. मतलब 30 chest compression करना है, उसके बाद फिर से रुकना है, फिर वो उसको और एक बार करना चाहिए। हम लोग एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो देख लेंगे अबाउट CPR ट्रेनिंग। किसी का एक्सपीरियंस है CPR के बारे में? नो। नो, ठीक है, एक बार एक वीडियो देखते हैं तो इसमें भी पूरा जो भी हम लोग अभी पढ़ाई किए हैं। जानने को तो जानते हैं सर हम लोग, मतलब ऐसे टीवी में देखा हुआ है, ऐसे दिखाया हुआ है कैसे होता है कैसे नहीं, मतलब सीरियल वगैरह नहीं, एक्चुअली डॉक्टर लोग कैसे बताए हैं ये सब, बट ऐसा कभी करके अच्छा ठीक, नहीं। एक बार देखते हैं वीडियो, हाँ, थोड़ा समझ में आ जाए। If you see a teen or adult suddenly collapse, it's important to act fast. Helping to save a life is easier than you might think. Just start hands-only CPR. The first step is to send someone to call your local emergency response number or call it yourself. Then get directly over the victim. Put the heel of one hand in the center of the chest, then put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. It's important to push, giving 100 to 120 compressions per minute, which is about the same tempo as this song. Let's hope you never have to use hands-only CPR. But if you see a teen or adult suddenly collapse, don't be afraid to try it. Remember, call your local emergency number, then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. Your actions can help save a life. Okay, this is the procedure of CPR. স্যার এটা মিনিটে কতবার বললো প্রেস? 100 to 120 per minute. उसका जो इंटेंसिफाई होगा वो होगा, लेकिन प्रेस करना है 30. Okay. Okay, so we'll conclude the session for today. अच्छा, आज हम सभी को एक वो क्वेश्चन आंसर का एक लिंक हम फॉरवर्ड करेंगे. So you people have to prepare मतलब वो डेमो एग्जामिनेशन वो देते रहना है, and then again come back. नेक्स्ट मंडे हम लोग ये पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे. बाकी एक बार सभी को बोलेंगे. अच्छा रुको एक मिनट सर
বলছি আমি 28 তারিখের মানে থিওরি সেশনটা আমি মিস করেছি, তা ওটা একটু ভিডিওতে যদি দিয়ে দেন ভালো হয়। आज अगर यही भी गया है तो कल मॉर्निंग तो मिल ही जाएगा। 28 তারিখ এটা ক্লাসরুমে এসছে মেবি, দেখলাম एक बार देख लेना, अगर नहीं भी है 28শে ডিসেম্বরেরটা এসছে ক্লাসরুমে, 28 আর 26। ঠিক আছে, আমি দেখে নেব। স্যার বলছি সকালবেলা 7টার ক্লাসটা হবে না? হবে হবে ও, এই সপ্তাহে আমি একটু ছিলাম না, ব্যস্ত ছিলাম। Yes. এই সামনে সোমবার থেকে কন্টিনিউ। Okay, I have sent you one Google Classroom, so you have to just check it. Okay, इसमें 400-500 जो भी क्वेश्चन है वो पूरा पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको लेके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी लिखना है, चारों ऑप्शन भी लिख के रखना। हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन लिख के रखे और फिर वो नहीं होगा। क्वेश्चन भी लिखना है, उनका चारों ऑप्शन लिख के रखना है, देन विल डिस्कस। वन डे विल गिव टाइम। जैसे अगर मंडे पूरा हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर वेडनेसडे एक दिन हम लोग पूरा सिलेबस को रिवाइज करेंगे। ओके, फिर उसके बाद 1-2 दिन हम लोग फिर बाकी क्वेश्चन आंसर लेके चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक तो एग्जामिनेशन ही होगा। ओके, सो स्ट्रेट योर स्पाइन, कीप क्लोज योर आईज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। ओम शांति शांति शांति। राम साहब, when you feel wrong, gently attach your ball. Gently you. अच्छा, Sir. और भी भेजना होगा सभी को। हम एक बार व्हाट्सएप में वो भेज देते हैं, जो भी बिलो डिटेल्स बोल के, वो सारा डिटेल्स मुझे रिटन में चाहिए एंड व्हाट्सएप में चाहिए। ओके, सेंड इट और व्हाट्सएप में पर्सनली। हाँ, इसमें एक फोटो बोला हुआ है, वो फोटो एक मोबाइल पे क्लिक, जेपीजी फॉर्मेट बोला हुआ है, मतलब आप मोबाइल पे क्लिक करके जो आप अपना सर्टिफिकेट के ऊपर देखना चाहते हो वैसे ही फोटो भेजना है, और वो व्हाट्सएप में मुझे पर्सनली भेजना है। ओके, यस স্যার বলছিলাম যে আমাদের তো এক্সাম, বলছি আমাদের এক্সাম তো 60 থিওরি হবে আর 140 প্র্যাকটিক্যাল। 60 থিওরি and 140 প্র্যাকটিক্যাল। তো ওরাল কি ওর 60 এর মধ্যেই? 140 এর মধ্যে। আচ্ছা, আর 60 মার্কস মিন্স 1 নাম্বার করে? Yes, মানে 60টা কোশ্চেন, তাই তো? আচ্ছা, ঠিক। and you need to score 42 to pass the examination. ওকে Okay, no problem. একদিনে ফুল কমপ্লিট হয়ে যাবে 10 তারিখের মধ্যে থিওরি? हाँ हाँ, थ्योरी 2 घंटा होगा, फिर 1 आवर ओनली प्रैक्टिकल। স্যার আমাদের 3টে ইউনিট একসাথে পরীক্ষা হবে, মানে ফার্স্ট ইউনিট, সেকেন্ড ইউনিট, থার্ড ইউনিট? দেখো তোমাদের के क्वेश्चन आंसर পাঠিয়ে দিয়েছি, এই একটা লিংক পাঠিয়েছি, ওখান থেকে গিয়ে ইউজার এক্সামিনেশন, ডেমো এক্সামিনেশন তো করে নেবে। ওই প্রশ্নগুলো মধ্যে থেকেই মেনলি। স্যার ওটা এনরোলমেন্ট নাম্বার বলছে, এনরোলমেন্ট নাম্বার কোনটা?
ওই তো এই দেখো আপনি যেটা পাঠিয়েছেন ইউজার আইডি ইউজার নেম দিয়ে দিন। ও ইউজার নেমে ওই এনরোলমেন্ট নাম্বারটা আর পাসওয়ার্ড এটা হ্যাঁ খুলে নেবে দেখবে হয়ে যাবে। ওকে স্যার বলছি কি 4 তারিখ কি ক্লাস হবে? না 4 তারিখ না হবে না। ঠিক আছে, ওকে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।